Okay, so your movement of force, movement, or you can say the torque. Okay, both are same. It's the turning effect of a force or Yeah, something. yeah. So that is equal to force Times perpendicular distance. perpendicular distance. Okay, remember perpendicular distance from the line of action of the force. Okay, so Yeah. that will be equal to FD. Unit will be equal to Newton meter. Okay, and principle of the movement is equal to sum of the principle of movement. That, Sum of moment was 0. yeah, sum of clockwise movement is equal to sum of anti-clockwise movement. Yeah. Okay. Okay. Perpendicular distance means that if the circle is given to you like this, okay, if this is the circle and one force is applied in this direction, like this, and this is the center, and it make an angle of theta, which is equal to the radius. This will be radius and my angle of 90 degree. So force is acting, okay, on this point, and that is making angle of 90 degree. Okay, so this will be the perpendicular distance from the center. So your movement for this will be equal to this is, let's say this is F. So the movement will be equal to, or you can say that torque will be equal to, F times R. yeah, F times R. But if the force is acting like in this direction, Like that. let's say this direction, then Oh, the, okay. yeah, the angle is not equal to 90 degree, then your moment of torque will not be equal to this. Because it's not perpendicular. You have to resolve it. Yeah, so you will have to resolve it. So let's resolve. So can you resolve it so that we get Yeah. perpendicular distance? F cos theta R. Oh my god, that's wrong. Yeah, you're right. R cos theta times F. Yeah, r cos theta times F. Yes. So you have to always resolve the distance, not the force. Or it depends. Okay, so if you resolve this force in this direction, like this, and then this, and this angle will be equal to what? You need to find this angle. So it will be hard for you. Oh, yeah. If this angle is given to you, this will be theta, and what about this angle? This angle will be equal to 90 minus theta. 180 minus 90 minus theta. Yeah. That's Okay, theta. and this angle is this angle is You can't find it. okay. This angle is unknown. Yeah. Plus 90 plus 90 minus theta is equal to 180 degree. Yeah. So this will cut out by this. So your u will be equal to theta. Unknown will be equal to theta. So this will be equal to theta. Oh. Yes. So you can use this f. That should be f cos theta. R times Yeah. f cos theta. So it is not necessary that you will always resolve the distance. Okay. It depends on you, on the theta angle. Okay. But it doesn't make sense because how come F cos theta equals R and R cos theta equals F? Oh yeah, it does. Okay, I got it. Actually, the direction of this is like this. So that will be r plus f cos theta, f sin theta. Sorry. Yeah, I get it. Okay. Now, principle of movement, sum of clockwise movement is equal to sum of anti-clockwise movement. So what do you mean by this? So let's explain it a little bit. So let's say we have a period, okay, and that is like this. This is the fulcrum, and this is
one weight is here, that is W1, and second weight is here, that is W. This is W1, this is W2. The distance is this will be equal to D2. This will be equal to D1. So this distance is making angle of 90 degree with this. So you can say that my M1, which is movement, we represent the movement by capital M1 will be equal to W1 D1. My M2 will be equal to W2 D2. Okay. So the movement of this will be in this direction, in the clockwise, okay, and movement of this will be in this direction, anti-clockwise. Yeah. So your W1 D1, it depends on this value, that if this is in equilibrium position, okay, then in equilibrium your W1 D1 should be equal to W2 D2. How do you know if something's anti-clockwise or clockwise? This is anti-clockwise. As How do you know? okay, this is applying force in this direction. Okay, so it will move like this. Yeah. If, Okay, but if this is zero, if this is zero, yeah. then it will move like this. Okay, and if this is zero, then it will move like this. Yeah, I get it. Yeah, this is in the anti-clockwise direction. Now it's easy to see, but usually when there's so many forces, it's hard to see which one's clockwise, which one's anti-clockwise. I will show you example later. So many forces. In example, they said that another weight is hanging over here. That is W3. Third weight is hanging over here. That is W4. Yeah. So find like this, yeah. So this will be in this. You can add this movement with this movement because both are in the same clockwise, and this is also clockwise. This this is anti-clockwise and this is also anti-clockwise. So you can add these two because both are in the anti-clockwise. Then you will compare both. If both your W1 D1 plus W3 and perpendicular distance is equal to the moment on the right side, then the body will be in equilibrium. Otherwise, the body will not be in equilibrium. And they will ask that check that either the body is in equilibrium or not. So you what if there's a force going up like this? So that force, it depends on this force will be opposite of these two. Let's say X force is acting, so your X force will be equal to this. Okay, W2 plus W4. X force is MA, and this will be MG. This is also force. This is also force. This is also force. Oh. अच्छा, मूवमेंट ऑफ फोर्स, सही है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, और इसे हम इस तरह टॉर्क भी कह सकते हैं, सही है, इसका सेकंड नेम टॉर्क भी है, इसको आप टॉर्क भी कह सकते हो या मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। अच्छा, व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट द फोर्स मे काज द ऑब्जेक्ट टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, सही है, वो लीनियर मोमेंटम, वो बाद में हम पढ़ें। अच्छा, मेरे साथ अगर उस पर एक बॉडी है, उस पर मैं फोर्स ऐड कर रहा हूँ तो स्ट्रेट मोशन करेगा, सही है। अच्छा, अगर किसी बॉडी पे मैं कोई फोर्स ऐड कर दूं किसी और एंगल से तो ये रोटेट भी करेगा, इसको मैं इस पोजीशन में भी ला सकता हूं। अगर मैं इस बॉडी को रोटेट करना चाहता हूं तो उसको उस पोजीशन में फोर्स अप्लाई करूंगा जो इस बॉडी को रोटेट कर लेगा। अच्छा, किस तरह, यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल है, उसमें हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो। अच्छा, थिंक अबाउट अ मीटर रॉड हेल्ड इन द हैंड एट वन एंड सो दैट द रूल is horizontal figure. If the weight is hung from the ruler, we can feel a turning effect on the ruler. The turning effect increase if the weight is increase. सही है, अगर इस वेट को मैं इंक्रीज कर दूं, सही है, इन बढ़ा दूं, या इस तरह को यहाँ पे मैं फुल क्रम रख दूं, सही है, वेट से आप वैसे कंफ्यूज हो जाओगे, तो फुल क्रम रख दूं तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं एक वेट कर दूं, सही है, और इसकी वेट अगर ये वेट मैं इंक्रीज कर दूं तो इसका रोटेशन भी इंक्रीज होगा, सही है। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि उस पर डाउनवर्ड फोर्स मैक्सिमम ऐड करेगा। अच्छा, ये मीटर रॉड कब रोटेट करेगा? जब यहाँ पे मैं फोर्स ऐड कर दूं, सही है। तो इस डायरेक्शन में कौन फोर्स ऐड कर रहा है? अभी ये वेट इस डायरेक्शन में फोर्स ऐड कर रहे हैं, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? mg, डाउनवर्ड नीचे की तरफ इस वेट पे। अच्छा, इस वेट को मैं इंक्रीज कर दूं या इसका मास मैं इंक्रीज कर दूं, मीन्स मास इंक्रीज कर दूं तो डाउनवर्ड फोर्स इंक्रीज कर दूं,
यानी इस फोर्स को मैं इंक्रीज कर दूं तो टर्निंग इफेक्ट भी मैक्सिमम होगा, यानी ज़्यादा होगा। सही है। अच्छा, if the weight is hung from the ruler, we can feel a turning effect on the ruler. The turning effect increase if the weight is increased, or it is moved further from the hand along the ruler. अच्छा, the turning effect at the hand where the meter rod is pure. अच्छा, keeping the weight and its distance along the ruler constant, the turning effect can be changed by holding the ruler at the angle of its horizontal. अच्छा, यानी अगर मैं इसको कांस्टेंट रखना चाहता हूँ, सही है, तो यहाँ पे एक फोर्स ऐड करूँगा। सही है। अगर इस मीटर रोड को मैं इस तरह पकड़ लूँ, यहाँ से पकड़ लूँ, यहीं से हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे ऐड कर दूँ, वर्टिकल फोर्स ऐड ना करूँ, तो फिर ये घूमेगा कि नहीं, ये रोटेट करेगा कि नहीं, ये मीटर रोड नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, नहीं, क्योंकि का कोई फोर्स नहीं लग रहा, हम उधर को लगा रहे हैं। हाँ, उधर को लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट पे फोर्स ऐड कर रहे हैं, वर्टिकल फोर्स हम ऐड नहीं कर रहे हैं, तो इसी वजह से ये रोटेट करेगा। सही है, ये रोटेट करे। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स ऐड कर दूं तो ये फिर बहुत यानी रोटेशन करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ से हैंडल किया हुआ है इसे। यहाँ पे मैं एक एक्स कंपोनेंट लगा रहा हूँ, एक वाई कंपोनेंट, ये देख इस डायरेक्शन में फोर्स ऐड कर रहे हैं। सही है, इस डायरेक्शन में फोर्स ऐड कर मीन इसका एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है। अगर मैं इसको बिल्कुल स्टैटिक रखना चाहूँ, यानी स्टैटिक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इस मीटर रोड को रखना चाहूँ, तो क्या करूँगा, इस डायरेक्शन में मैं फोर्स ऐड करूँगा, यानी इक्वल एंड ऑपोजिट टू mg, इस डायरेक्शन में मैं फोर्स ऐड करूँगा, तो ये बिल्कुल यानी स्टैटिक हॉरिजॉन्टल पोजीशन इस मीटर रोड का होगा। द टर्निंग इफेक्ट कैन बी चेंज बाय होल्डिंग द रूलर एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, यानी इसको इसने होल्ड किया हुआ है एट एंगल थीटा, ये एंगल थीटा बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल के साथ। सही है। दिस हैंड मेक एन एंगल थीटा विद दिस मीटर रोड। सही है। अच्छा, द टर्निंग इफेक्ट बिकम स्मॉलर। तो इसको भी रिजॉल्व करना है। हाँ बिल्कुल, अगर ये एंगल अदर देन अगर इसका कोई ना कोई एंगल हो, आपने इस फॉर एग्जाम्पल इस पोजीशन को देख लें, यहाँ पे मीटर रोड को उसने यानी पकड़ा हुआ है, तो इसका कितना एंगल बना है, थीटा एंगल बना है, तो इसको आप रिजॉल्व करोगे एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। सही है। अच्छा, यहाँ पे द टर्निंग इफेक्ट बिकम स्मॉलर एज द रूल अप्रोच द वर्टिकल पोजीशन। अगर यानी वही बात कर रहे हैं कि अगर इसका इफेक्ट स्मॉल होगा अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर लूँ। सही है। द टर्निंग इफेक्ट कैन बिकम स्मॉलर एज द रूलर अप्रोच द वर्टिकल पोजीशन। सही है। तो टर्निंग इफेक्ट स्मॉल होगा, आप बिल्कुल वर्टिकल आ जाओ। अगर वर्टिकल से इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर लो, तो इसका एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है, सॉरी ये एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है, तो ये इस केस में मुझे ज़्यादा फोर्स ऐड करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू दिस फोर्स, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्स कंपोनेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और वाई कंपोनेंट भी, लेकिन वाई कंपोनेंट स्मॉल है एज कम्पेयर टू दिस। अच्छा, रिटर्न इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ। अच्छा, इन सारी बातों का यानी समरी यही है कि आप अगर फोर्स को फॉर एग्जांपल आप फोर्स को यहाँ पे आप फोर्स ऐड कर लो, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू कीप दिस मीटर रोड इन स्टैटिक पोजीशन, बट इफ यू अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, उसके बाद आपके पास कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा एज कंपेयर टू दिस अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर लो तो बहुत कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा एज कंपेयर टू द अदर टू पोजीशन। अच्छा, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ द फोर्स। सही है। इसको मूवमेंट ऑफ द फोर्स भी कह सकते हो और इसको टॉर्क भी आप कह सकते हो। सही है। टॉर्क, रोटेशन, टॉर्क। मूवमेंट ऑफ द फोर्स और टॉर्क में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेम चीज सेम है। अगर मूवमेंट का पूछ लें, जस्ट मूवमेंट का पूछे, तो उसका भी यही मतलब है, यानी टॉर्क। सही है। अच्छा, द मूवमेंट ऑफ द फोर्स डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड आल्सो ऑन द डिस्टेंस। अच्छा, अभी हमने क्या बातें करी, हमने यही बात करी कि फोर्स किस डायरेक्शन में ऐड करेगा। उसके बाद अभी इसमें एक दूसरा टर्म भी है जो कि ये डिस्टेंस है, कि ये फोर्स कितने डिस्टेंस
पे हम एक्ट कर रहे हैं, एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज मोमेंट आर्म, इसे मोमेंट आर्म कहते हैं। The moment of the force depends on the magnitude of the force and also on the distance of the force from the period or fulcrum। सही है। लेट्स से ये मेरे साथ फुलक्रम है, ये मेरे साथ फुलक्रम है, तो इससे जो डिस्टेंस होगा वो मेरा मोमेंट आर्म है। सही है, मोमेंट आर्म। अच्छा, दिस डिस्टेंस मस्ट बी डिफाइंड प्रिसाइसली। अच्छा, इसको किस तरह मैयर करना है वो हम आगे एग्जांपल्स में पढ़ेंगे। अच्छा, इन द सिंपल एक्सपेरिमेंट अबव वी saw that the moment of the force depend on the angle of the ruler to the horizontal। वो मैंने अभी आपसे बात डिस्कस कर ली कि किस एंगल में रख दोगे, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने इस एंगल में रख दिया तो फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा एज कम्पेयर टू 90 डिग्री एंगल, उस केस में फोर्स कम रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, वेरिंग दिस एंगल मीन्स दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पीरियड वेरीड। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा टर्म, यहाँ पे ये लोग यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप फोर्स यहाँ पे, इसका फुल क्रम यहाँ पे और आप फोर्स यहाँ पे ऐड कर दो तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, मूवमेंट किसके इक्वल है? मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स टाइम मूवमेंट आर्म एंड दैट इज आर। ओके, यहाँ पे मैं फोर्स ऐड कर रहा हूँ, मूवमेंट आर्म कितना है? ये मूवमेंट आर्म है, तो मूवमेंट आर्म यहाँ पे मूवमेंट आर्म स्मॉल है। सही है, तो ये स्मॉल है, ये लार्ज होगा। सही है, ये स्मॉल है। सही है। अच्छा, अगर ये फोर्स मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, लेट से यहाँ पे मैं फोर्स ऐड कर दूं, तो यहाँ पे मूवमेंट आर्म कितना है? ज़्यादा है। सही है, फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा? फोर्स स्मॉलर होगा यहाँ पे। सही है, अगर वही सेम मूवमेंट मैंने प्रोड्यूस करना है, यही सेम मूवमेंट मैंने प्रोड्यूस करना है, ये दोनों मूवमेंट इक्वल है। अगर सेम मूवमेंट मैंने प्रोड्यूस करना है, अगर यहाँ पे प्रोड्यूस करूंगा तो यहाँ पे कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा? लार्ज फोर्स विल बी रिक्वायर्ड एंड द मूवमेंट आर्म विल बी स्मॉलर। बट इफ आई वांट टू create the same movement at this position, then at this position the force will be minimum and the moment arm will be maximum। समझ आ गया आपको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मूवमेंट आर्म जितना छोटा होगा फोर्स उतना बड़ा आएगा हमारा, है ना? सही है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली इसी तरह है। मूवमेंट आर्म जितना बड़ा होगा हमारा मूवमेंट इतना छोटा आएगा। इतना छोटा है। अच्छा, the movement of force depends on the magnitude of force and also on the distance of the force from the period of force। This distance must be defined precisely। अच्छा, in the simple experiment above we saw that the movement of the force depend on the angle of the ruler to the horizontal। in movement of the force एंगल पे भी डिपेंड करता है और वो एंगल ये एंगल है। सही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास मीटर रोड है, लेट्स से ये आपके पास मीटर रोड है। सही है, सही है, और आपने फोर्स इस डायरेक्शन में ऐड कर दिया इस पे, दिस इज योर फोर्स। ओके, अच्छा, अच्छा, तो ये फोर्स कितना एंगल बना रहे हैं? इसके साथ इतना एंगल बना रहे हैं, थीटा। सही है। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ लेट सपोज ये मेरे साथ फुल क्रम है। सही है, ये पिवट ये क्या है? ये मेरे साथ फुल क्रम एफ फुल। अच्छा, मेरा सा फॉर्मूला क्या है? मूवमेंट इज इक्वल टू आर क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मूवमेंट आर्म। दिस इज एफ, इसका मतलब है परपेंडिकुलर फोर्स, यानी यहाँ पे मेरे साथ फोर्स एंगल थीटा
यानी एक्ट कर रहा है, सही है। तो यहाँ पे मैं कौन सा फोर्स लूंगा? परपेंडिकुलर फोर्स। जो इस मोमेंट आर्म को परपेंडिकुलर होगा वही कंपोनेंट में लूंगा, क्योंकि ये इसका यानी मोमेंट का फॉर्मूला यही है कि मोमेंट इज इक्वल टू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोमेंट आर्म एंड द परपेंडिकुलर फोर्स एंड द फोर्स अप्लाइंग परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म। सही है, ये आपने ज़हन में रखना है, फोर्स अप्लाइंग परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म। सही है। अच्छा, इस फोर्स को मैं रिजॉल्व कर लूंगा। इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूं। अच्छा, इसको यानी मेरे साथ जो यहां पे कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। अच्छा, ये फोर्स जो है ये इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है, ये फोर्स जो है ये इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये यहां पे आ गया। सही है। और ये मेरे साथ अल्टरनेट एंगल है, तो ये अल्टरनेट एंगल मैंने सेम वहीं पे लिख लिया। अच्छा, यहां पे इसको मैं रिजॉल्व कर लूं, तो ये मैं इस तरह रिजॉल्व कर लूं। अच्छा, ये डिस्टेंस और ये इक्वल है, तो इसको यानी उस फोर्स को मैं यहां पे भी ला सकता हूं, इस फोर्स को मैं यहां पे भी ला सकता हूं। सही है। अभी सही आपको क्लियर समझ आ जाएगा। समझ आ गया यहां तक? अच्छा, फार्मूला क्या है मेरे साथ? ला रहे हैं कि हमने उसकी पोजीशन चेंज कर दिया है ना सर। हाँ, एंगल आ रहा है। अगर एंगल ना आता, अगर इस तरह फोर्स ऐड कर, आपको लेट से एग्जांपल में गिवन कि इस तरह फोर्स ऐड कर रहा है, तो इस केस में आपने क्या लिखना है? सिर्फ फोर्स को लेना है और मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास मोमेंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ एंगल फोर्स इज परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर बता देंगे। हाँ, तो उसके बाद आपने इसका रिजॉल्व करना है। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इस फोर्स को रिजॉल्व करना है। अच्छा, जब फोर्स को आप रिजॉल्व कर लो तो हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला है कि मेरे साथ मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे मोमेंट आर्म को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? लेट्स से दिस इज माय एफ, दिस इज माय एफ एक्स, दिस इज माय एफ वाई। तो मोमेंट आर्म, ये मोमेंट एफ वाई, गुड। सो इट विल बी आर आर क्रॉस एफ वाई। सही है। अच्छा, एफ वाई आपको सिर्फ एफ गिवन है कि एफ इज इक्वल टू 48 न्यूटन, डेट से आपको ये गिवन है। तो एफ वाई किसकी गिवन है? एफ वाई इज इक्वल टू 48 साइन 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 थीटा। सॉरी साइन जी, तो यहाँ पे 48 की जगह लेट से मैं एफ लिख लेता हूँ, एफ। तो मूवमेंट क्या होगा? मूवमेंट इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास फोर्स गिवन है एंड दैट फोर्स इज अप्लाइड एट एंगल थीटा, सो आपने ये फार्मूला यूज करने हैं। लेकिन इफ दैट फोर्स इज अप्लाइड एट एंगल 90 डिग्री, तो आपने फिर भी ये फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर लो तो आपके पास साइन 91 आ जाएगा। सही है। तो बस सिंपल यही कि आप इस फार्मूले को याद कर लो, ये एंड वाला, इस फार्मूले को बस आप याद कर लो, एफ मोमेंट इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। सही है। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही कहा है, यहाँ पे इन्होंने रिजॉल्व किया है, उसके बाद यही बातें की है सारे। क्लियर कर दूं मैं? ठीक है सर, ठीक है, अच्छा समझ आ रही है। अच्छा, द मूवमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये पढ़ दिया। द डिस्टेंस मस्ट बी डिफाइंड प्रिसाइसली इन ए सिंपल एक्सपेरिमेंट above. We saw that the moment of force depend on the angle of the ruler to the horizontal. Varying this angle means that the line of action of force from the period varied. The distance required when finding the moment of force is the perpendicular distance of the line of action of force from the period. वही बात है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस कर ली। The moment of force is defined as the product of force and the perpendicular distance of the line of action of the force from the period. ये बात आप वैसे जहन में रखो, वैसे ना कंसेप्चुअल कोई क्वेश्चन आ जाए और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ, तो ये बात आप जहन में रखो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें जो
की हुई है ये डेफिनेशन, उल्टा मारा मैंने इसको। कौन सा? ये डेफिनेशन जो है ना, ये ओ लेवल से याद की हुई है मैंने इसकी पहले से। अच्छा, लेकिन अभी तो डेफिनेशन नहीं आएंगे, अभी तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो आप ए लेवल में आ गए हो, इम्प्रूवमेंट कर रहे हो ना जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता, तो चीज़ें भी कॉम्प्लेक्स होते जा रही हैं। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। नहीं, फिजिक्स कॉम्प्लेक्स। परसेंटेज डिफरेंस के आराम से निकाल सकते हैं, मुझसे एक्स भी निकालो, वाई भी निकालो, ये भी निकालो, अब चीज भी हो गया। एक ज़माना था ये हमारे भी बहुत अजीब थे, लेकिन अभी फुल कमांड, अभी फुल यानी ग्रिप है इस बुक पे, क्योंकि इतना पढ़ लिए दिन रात एक करके। लम्स में तो फिर बहुत ज़्यादा पढ़ा था, तो अभी यानी पूरा ग्रिप है इस बुक पे, यानी इतना मुश्किल नहीं है अभी। पहले बहुत था, जब मैं ए लेवल में था तो उस टाइम भी बहुत मुश्किल था, बहुत सारी चीज़ें थे जो क्लियर नहीं हो रहे थे, बहुत कन्फ्यूज़न। सिलेबस कहाँ से किया था? मैं यहाँ पेशावर से किया था। स्कूल कौन सा? नहीं, रूट से नहीं किया था मैंने, यहाँ पे एफ जी था, उससे मैंने किया था। एफ जी जो सदर में, पेशावर सदर में, वहाँ पे हम जाते थे। अच्छा, the movement of force is defined. अच्छा, referring to figure 5.2, the force has magnitude F. The force has magnitude F and act at a point distance L from the pure. वही बात है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की थी। अच्छा, when the ruler is at angle theta to the horizontal movement of force FD। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे cos थीटा दिया है। cos थीटा क्यों दिया है? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस पे अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि ये यहाँ पे डिस्टेंस ये मैं, अच्छा यहाँ पे प्योर भी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये मेरे साथ प्योर है, सही है। फोर्स ये मेरे साथ लेट से एक रोड है, सही है, और फोर्स इस डायरेक्शन में इस तरह फोर्स ऐड कर रहा है। तो आपने इस टाइप के न्यूमेरिकल्स किस तरह सॉल्व करने हैं, यानी यहाँ पे मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे ये आपको गिवन है, ये लेंथ भी आपको गिवन है, और फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, सही है। तो नहीं सवाल, वेट, आपको ये गिवन है, ये, और फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा है। अजी आगे एक एग्जांपल है, वो इससे रिलेटेड है, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे ये भी उसी टाइप का है, तो इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अभी मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पे आर एफ साइन थीटा आएगा, लेकिन वो उस केस में आता था, सही है, आर एफ साइन थीटा। लेकिन इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने सिर्फ ये रटा नहीं लगाना कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, इसको आपने समझना है। अच्छा, इस एग्जांपल को कर लेते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, उसी को पूरा देखना। इस एग्जांपल में आपका माइंड क्लियर हो जाए। अच्छा, इन फिगर 5.3 ए लाइट रोड ए बी ऑफ लेंथ 45। सर इसका भी एक हल है वैसे, मतलब उसका ये होता है कि अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहे हैं ना, तब वो हमेशा वो एक्स प्लस होता है और वाई वाला साइन होता है, लेकिन अगर वर्टिकल के साथ एंगल बना रहे हैं ना तो उल्टा होता है। तो आप तो वैसे भी कर सकते। नहीं, इस तरह आप नहीं, यानी यहाँ पे आप कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ इस तरह एंगल बना रहे हैं, तो ये मेरे साथ एफ एक्स होगा और ये एफ वाई होगा, इस तरह आप कह रहे हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ अब ये एफ वाई और एफ एक्स वैसे ही होंगे, लेकिन इस वाले में ना, क्योंकि ये वर्टिकल के साथ बना रहे हैं ना, तो जो एफ एक्स है वो इसमें साइन थीटा होगा और एफ वाई जो है वो कॉस थीटा होगा, और अगर वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाए तो उसका उल्टा होता है। उल्टा होगा, सही बात है आपकी। इजी वे पे नहीं, यहाँ पे भी आप इसको इजी कर सकते हो, इसको आप बहुत इजी कर सकते हो। अगर आपको ये एंगल, आप ये एंगल फाइंड कर दो, तो 90 - 65 इज इक्वल टू दिस एंगल,
90 माइनस 65, तो 25, इट इज इक्वल टू 25। सो ओके, तो इस यहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं, इसमें आपको टेक्निक्स आ जाएंगे कि इस टाइप के न्यूमेरिकल को आपने किस तरह सॉल्व करना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप याद ना करो, क्योंकि याद करना इतना आसान काम नहीं है। समझना आसान है और याद करना इतना आसान काम नहीं है। तो एग्ज़ाम के फॉर एग्जांपल आप मिड में हो, पेपर को सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम के मिड में हो। हेलो, मेरे आवाज़ सही आ रही है आपको? जी जी, वो जूम में बंद हुआ था, बात तो आ रही अच्छा, अगर आप एग्ज़ाम कर रहे हो, उसके मिड में आपके यानी आपके जहन से आपने कुछ याद किया हो और उस टाइम निकल जाए, तो फिर क्या करोगे? इसलिए बेस्ट यही है कि आप समझ लो इनको। सही है। अच्छा, a light rod AB of length 45 centimeter is held at A। सही है, 45 सेंटीमीटर इज हेल्ड एट ए। यहाँ पे यानी फॉर एग्जाम्पल इस तरह कर लो कि फॉर एग्जाम्पल एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, और ये यानी यहाँ पे ये फिक्स अटैच है, ये रस्सी फिक्स अटैच है, और यहाँ पे ये रोड है। सही है, और यहाँ पे मैं फोर्स ऐड कर रहा हूँ, इसी तरह आप समझ लो। सही है। फॉर एग्जाम्पल ये रूफ है, छत है, रूफ, और ये यानी एक वायर है। सही है, उसके साथ ये वुड स्टिक अटैच है। सही है, और फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, so that the rod make an angle of 65 degree to the vertical. A vertical force of 15 Newton act on the rod at B. Calculate the moment of force about the end A. यहाँ पे मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई फाइंड करना है। सॉरी, मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए मुझे फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स फार्मूला यही है कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्योर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 15 इज द दिस फोर्स 15 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये मेरे साथ फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सही है, फोर्स इस डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। वेट, अच्छा, तो ये मेरे साथ 45 है, और इस एंगल को आप फाइंड कर दो, 25 आ गया। तो 25। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि 15 मल्टीप्लाई बाय 0.45 इंटू कॉस 25, इस तरह भी सही होगा। लेट चेक इट, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.45 कॉस 25, 6.11। सही है, समझ आ गया आपको? यहाँ पे मुझे, अच्छा, यहाँ पे आपने इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपने क्या करने हैं, आपने यहाँ पे मैंने फोर्स को देख लिया, फोर्स मुझे परपेंडिकुलर यानी एक ही कंपोनेंट में गिवन है, उसमें एंगल गिवन नहीं कि फॉर एग्जांपल फोर्स इस एंगल में ऐड कर रहा है या इस एंगल में ऐड कर रहा है, वहाँ पे एक ही कंपोनेंट फोर्स की गिवन है, एंड दैट इज दिस वन, Fy। सही है, लेकिन यहाँ पे मसला कहाँ पे, मसला मोमेंट आर्म में। मोमेंट आर्म मुझे एट सम एंगल गिवन है, यानी इस डायरेक्शन में मोमेंट आर्म मुझे गिवन है। सही है, जी जी। तो अगर मैंने रोटेशन प्रोड्यूस करना है और फोर्स इस डायरेक्शन में हो, तो मोमेंट आर्म मैंने किस तरह रखना है, परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर रखना है, इस तरह। सही है, तो मैं इसका ये कंपोनेंट से ले लूंगा, क्योंकि ये कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा इसके रोटेशन में, यानी रोटेशन को प्रोड्यूस करने में ओनली दिस कंपोनेंट ऑफ मोमेंट आर्म विल इन्वॉल्व। सही है, ये RH होगा, R हॉरिजॉन्टल।
बनाया 25 तो ये वाला है ना, तो वो 90 हो गया 30 डिग्री। सही है। अच्छा, अगर मैं ये एंगल ले लूं, सो मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। अगर मैं ये एंगल 65 लेना चाहूँ तो यहाँ पे एंगल बनेगा या ये, तो वो लगा सकते हैं 5 तक से। जी बिल्कुल, तो वो sin 65 हो जाएगा, 0.45 sin 65। समझ आ गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अभी आई थिंक आपके लिए इजी हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। आपने देखना है कि मुझे कौन सा, अगर आपको कौन सा, यानी यहाँ पे मुझे फोर्स गिवन है, फोर्स एफ वाई, दैट इज वन कंपोनेंट, लेकिन मोमेंट आर्म मुझे एक सम एंगल गिवन है, एट सम एंगल, एंड दैट इज 65 डिग्री। सो इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया है, यानी ब्रेक डाउन कर दिए हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, लेकिन मैंने वही कंपोनेंट लिए जो मेरे लिए मुफीद है, यानी मेरे लिए एडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया इससे। सही है, तो यही। अच्छा, नेक्स्ट, refer to here, calculate the moment of force about A for the vertical force of 25 Newton with the rod at angle of 30 degree to the vertical of 25, ये मैं सर 25 न्यूटन हो गया, 25 न्यूटन with the rod at an angle of 30 degree to the vertical, ये 30 डिग्री। ये पे नहीं 25 न्यूटन लगाएंगे सर, कहाँ पे? ये पे। नहीं नहीं, वहाँ पे मैंने मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है। अच्छा, इससे वेट है। अच्छा ठीक है, इसमें मैंने गलत बोला। सही। अबाउट ए का मतलब कि ए पे 6 पॉइंट है हमारा। क्या आंसर आया आपके पास? क्या नहीं हुआ सर, एंगल नहीं सी बन रहा, एंगल का बता दें। नहीं, आपने क्या फाइंड किया, क्या मल्टीप्लाई किए? 25 मल्टीप्लाई बाय सर 30 किया। सो इट विल बी 25 मल्टीप्लाई बाय 0.45 sin 30, बस वही उसी तरह है जिस तरह लास्ट होगा था।